class. It is our chapter 5th, The Magpies Listen Part 2. In our first part, we have covered some part of this chapter. Now we will see the remaining part of this chapter. Before going to start, let's go through a short video about this chapter. The Magpies Lesson. Magpies are found in America, Europe and Australia. They are black and white in color. They are sociable birds who love brightly colored objects which they often steal from people's gardens. Years and years ago, ever so many years ago, only one bird in the whole world knew how to build a nest. That wise bird was the magpie. One day, all the other birds went to the magpie. They wanted to learn how to build nests. They begged the magpie to teach them. "Indeed, I am glad to teach you," said Mrs. Magpie. "Just watch and listen to me. First, you must choose a tall tree, like this great oak. Then, take sticks." "A tree? Broke in the bold eagle. A tree here in this valley? No trees nor valleys for me. My nest shall be on the highest cliff of the mountain." And away flew the eagle without waiting to hear more of the magpie's lesson. To this day, he puts together a few rough sticks on a rocky mountain cliff and calls them a nest. The magpie began again. "Take sticks like these," she said, "to a high branch." "Are you a fool?" cried the lark. "Don't you know that the first strong wind will blow your nest to the ground? And the first boy who comes this way will throw stones at it," added Mrs. Bobolink. "No high branches for us," sang the lark and the bobolink together. And down they flew into the tall grass of the meadow. There they had made their nests ever since. Mrs. Magpie didn't even look at the birds flying away. "Weave the sticks together so, in and out," she said cheerfully. "That will make the bottom of the nest." "I'll not set my nest on a branch like that," spoke up the oriole. "The wind surely would blow it off, as the lark just said." And the oriole flew away and hung her nest from little twigs. There you may see it even today, swinging in the wind far out at the end of a long branch. "Cover the inside of your nest with mud," Mrs. Magpie went on. "Then line it with soft grass, so." Dear, so much work to make a nest. Yawned the whippoorwill. I'm not going to take the trouble." And that lazy bird hasn't made a nest from that day to this. She just lays her eggs in a hollow in the ground, or perhaps on a log. Who would go to all that trouble?" Hooted the owl. "I think I have a better plan." She looked very wise, but said no more. You can guess what her plan was when you find her eggs in a crow's or a hawk's old nest. "Now take more mud and sticks," began the magpie once more. "You should build a dome over your nest. That is, to hide the little ones and to keep out the rain." "Oh, never mind the dome," said the robin. "I will cover my little ones with my wings. I can hide them and keep off the rain." "You are right, Mrs. Robin," said the crow. "We have no use for domes." And to this day, neither robins nor crows have built domes over their nests.
Mrs. Magpie went on building her nest, just as she knew it ought to be built. Soon it was done, dome and all. "Indeed, Mrs. Magpie," Said the swallows. "we like your nest. The dome is a fine thing. But why should we build it? There are plenty of domes already built. We only need to make our nest under them." Ever since then, many swallows build their nests on buildings, often under a roof or a window ledge. Others have made theirs under roofs of open barns, and still others under eaves. So all the birds flew away and left Mrs. Magpie without saying thank you. Each one built her nest as she pleased, and each one thought her way so much better than the magpie's. The magpie still builds her nest at the top of a high tree. She makes it of mud and sticks and covers it with a dome to make it comfortable and cozy. हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि बहुत साल पहले सिर्फ मैगपाई को ही पता था कि नेस्ट किस तरह से बनाया जाता है, और पूरे बर्ड्स जो है वो सारे के सारे एक दिन मैगपाई के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो उन्हें घर बनाना सिखाए, नेस्ट बनाना सिखाए। और जब मैगपाई अपना लेसन दे रहे थे कि नेस्ट किस तरह से बनाना है, तो बीच में ही ईगल उनकी बात काटता है और बताता है कि उसका घर ना तो वैली में होगा और ना ही ट्री पर होगा, तो उसका जो नेस्ट है वो कहाँ होगा, ऊंची चट्टान पर होगा। और ऐसा कहते हैं कहकर ईगल जो है वो वहाँ से उड़ जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। The magpie began again. "Take sticks like this," she said to a high branch. वो कहती है कि इस तरह से छोटे छोटे जो स्टिक्स हैं वो लेने हैं और ऊंची ब्रांच के ऊपर रखते हुए। "Are you a fool?" cried the lark. लार्क क्या कहता है? "Are you a fool?" क्यों? "Don't you know that the first strong wind will blow your nest to the ground?" लार्क कहता है कि "Are you a fool?" इतनी ऊंची ट्री पर आप थोड़ा स्टिक्स डालने के लिए बोल रहे हो, वहां पर घर बनाने के लिए बोल रहे हो, क्या फूल हो यानी मूर्ख हो? क्योंकि जब इतनी ऊंचाई पर हम नेस्ट बनाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, जब फर्स्ट विंड आएगी, हवा का झोंका आएगा, तो क्या होगा, वो नेस्ट क्या करेगी, अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। "And the first boy who comes his way will throw stones at it," added Mrs. Bobolink. जब लार्क ये अपनी बात कह रहा था, उसी समय बोबोलिंक बीच में ही बोलते हैं कि जब कोई भी लड़का आएगा और देखेगा फर्स्ट टाइम कि वहाँ पर नेस्ट बना हुआ है, तो क्या करेगा, स्टोन उठाकर फेंकेगा अपने नेस्ट की तरफ। "No high branches for us." हमारे लिए कोई भी ऊंची ब्रांचेस नहीं चलेगी। "Sang the lark and the bobolink together." लार्क और बोबोलिंक साथ में ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं कि हमारे लिए इतनी ऊंची ब्रांचेस नहीं होंगी। "And down they flew into the tall grass of the meadow. There they have made their nest ever since." ये जो लार्क और बोबोलिंक है वो दोनों भी क्या कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर, इतनी ऊंची ब्रांच पर उनका नेस्ट नहीं होगा, तो उनका नेस्ट वो कहाँ बनाना चाहते हैं, वो ऐसी बात कहकर वहाँ से उड़ जाते हैं और अपना नेस्ट जो है कहाँ बनाते हैं, मेडो में। मेडो, ग्रास ऑफ मेडो। मेडो का मीनिंग क्या है, ओपन ग्रासी एरिया। जो ओपन ग्रासी एरिया होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी घास होती है, तो उस घास के बीच में वो अपना नेस्ट बनाते हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि बोबोलिंक का और लार्क का जो घर है, नेस्ट है, वो कहाँ पर होता है, मेडो में, यानी कि ग्रास में, ग्रासी एरिया जो होता है वहाँ पर बोबोलिंक और लार्क का नेस्ट होता है। मिसेस मैगपाई डिडंट इवन लुक एट द बर्ड्स फ्लाइंग अवे। मिसेस मैगपाई क्या कर रही है, जो उड़कर गए हैं उनकी तरफ ध्यान दे रही है क्या? नहीं, वो अभी भी उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। Wave the sticks together, so in and out. Wave the sticks. वो अपना लेसन जो है वो आगे बताते जा रहे हैं कि क्या करना है, कि ये जो स्टिक्स है वो वेव करना है, इन एंड आउट, अंदर बाहर, इस तरह से वो घूमने हैं। She said cheerfully.
दैट विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट। इससे हमारा क्या बन जाएगा, नेस्ट का जो बॉटम है वो बन जाएगा। I will not set my nest on a branch like that, spoke of the oriole. The wind surely would blow it off, as the lark just said. तो ये जो ओरियोल बर्ड है ये क्या कहता है कि मैं भी अपना जो नेस्ट है इतनी ऊंची ब्रांच पर नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से लार्क ने अभी भी बताया था उस तरह से जब हवा आएगी जो की तो उसके साथ वो नेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए ओरियोल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि अपना घर ऊंची ब्रांच पर या ट्री पर बनाए, और इस तरह से वो वहाँ से निकल जाता है। एंड द ओरियोल फ्लू अवे एंड hung her nest from the little twigs. There you may see it even today, swinging in the wind far out at the end of a long branch. हम अभी भी देख सकते हैं कि ये जो ओरियोल है इसका जो नेस्ट है वो कहाँ पर होता है, एक टहनी के साथ टंगा हुआ होता है, लटका हुआ रहता है। ओरियोल कहता है कि उसे ऊंचाई पर अपना घर नहीं बनाना है, तो वो क्या कहता है एक टहनी के साथ उसका घर ऐसे, उसका जो नेस्ट है वो ऐसे टांग देता है। हम अभी भी देख सकते हैं कि टहनियों पर ऐसे जो लटके हुए घर होते हैं वो किसके होते हैं, ओरियोल के होते हैं। Cover the inside of your nest with mud, Mrs. Magpie went on. Mrs. Magpie क्या करती है, अपना लेसन आगे चालू रखती है, शुरू रखती है कि क्या करना है, cover the inside of your nest with mud। शुरू में उन्होंने क्या बताया था मैगपाई ने कि जो स्टिक्स है उन्हें इन एंड आउट रखकर उन्हें विप करना है, भुनना है, और उसके अंदर बाद में क्या रखना है, मड डालना है। मड यानी गीली मिट्टी, या फिर जो गीली मिट्टी होती है जिसे मड कहा जाता है, तो वो मड जो है वो उसके अंदर डालना है। देन लाइन इट विथ सॉफ्ट ग्रास, सो और अंत में उसे जो सॉफ्ट ग्रास है उससे कवर करना है। डियर डियर, सो मच वर्क टू मेक a nest, yawned the whippoorwill। बीच में ही whippoorwill जो है वो उसकी बात काटते हुए कहता है, डियर डियर, so much work to make a nest, एक नेस्ट बनाने के लिए इतना सारा काम। I am not going to take the trouble, मैं इतना सारा ट्रबल लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। And that lazy bird hasn't made a nest from that day to this, she just, अभी भी ये जो बर्ड है whippoorwill, ये क्या करता है, इतना सारा जो वर्क करना पड़ता है नेस्ट बनाने के लिए, वो सब करने के लिए वो रेडी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो क्या करता है, वहां से उठ जाता है। एंड शी जस्ट लेज हर एग्स इन अ होलो इन द ग्राउंड और परहैप्स ऑन अ लॉग। अभी भी whippoorwill जो ये जो बर्ड है वो क्या करता है, अपने जो एग है वो कहाँ देता है, उसका नेस्ट कौन सा है पता है, जो ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड में जो होल होता है वहाँ पर, या फिर जो लॉग होता है यानी उड़ होता है, तो उनके बीच में जो घर रहता है, होल रहता है, उसके बीच में वो अपना नेस्ट बना लेता है। Who will go to all that trouble, hooted the owl। बीच में ही फिर आउल बोल पड़ता है, कौन 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 करेगा इतना सारा काम एक नेस्ट बनाने के लिए। I think I have a better plan, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा विचार है, प्लान है। She looked very wise but said no more। जो आउल है वो बहुत ही होशियार ऐसे लगता है, बट वो क्या कहता है, बस अभी और नहीं। You can guess what her plan was। हम ये सोच सकते हैं कि उसका प्लान क्या होगा। When you find her egg in a crow's or a hawk's old nest, यानी ये जो आउल है वो क्या करता है, अपने जो नेस्ट एग्स है वो कहाँ पर देता है, जो क्रो का या हॉक का जो पुराना वाला नेस्ट होता है उस नेस्ट में अपने एग्स देता है। यानी ये कितना लेजी है कि खुद का अपना नेस्ट भी नहीं बनाता है। जो क्रो का पुराना घर होता है, पुराना नेस्ट होता है, या हॉक्स का जो पुराना नेस्ट होता है, उन्हीं नेस्ट में ये आउल जो है अपने एग्स देता है। नाउ टेक मोर मड एंड स्टिक्स। अभी मैगपाई अपना लेसन आगे बढ़ा रही है, क्या कहती है,
नाउ टेक मोर मड एंड स्टिक। अभी और मड और स्टिक आपको लेने हैं। बिगिन द मैगपाई वंस मोर। यू शुड बिल्ड अ डॉम ओवर योर नेस्ट। आपको क्या बनाना है? उस नेस्ट के ऊपर डोम बनाना है। डोम यानी कि क्या? डोम का मतलब होता है छत। ऊपर की साइड से जो घूंघट होता है, ऊपर ऐसे सर्कल में ऐसे थोड़ा सा सेमी सर्कल में जो छत होता है उनका नेस्ट के ऊपर का, उसे डोम कहा जाता है। यहाँ पर डोम का मतलब क्या दिया है? राउंडेड रूफ लाइक स्ट्रक्चर। राउंडेड रूफ लाइक स्ट्रक्चर। जो नेस्ट होता है तो नेस्ट के ऊपर रहता है ना, ऐसे बनाया हुआ बर्ड्स ने, उसे डोम कहा गया है। You should build a dome over your nest. That is to hide the little ones and to keep out the rain. ये जो डोम है वो किस लिए बनाना है? जिससे कि जो लिटिल वंस यानी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बचाने के लिए और उन्हें रेन से, बारिश से सुरक्षित रखने के लिए ये जो डोम है वो बनाने हैं। ये लेसन कौन पढ़ा रहा है? मैगपाई। ये बाकी वर्ड्स को बता रहे हैं। Oh, never mind the dome, said the robin. Robin बीच में रॉबिन बोलता है never mind the dome. डोम की तरफ इतना ध्यान देना जरूरी नहीं है। I will cover my little one with my wings. मैं अपने छोटे जो बेबीज हैं उनको किससे कवर करूंगा? With my wings. अपने पंखों के साथ उन्हें कवर कर दूंगा। I can hide them and keep off the rain. मैं उन्हें अपने विंग्स के बीच में हाइड कर लूंगी या छुपाऊंगा और रेन से भी बचा सकता हूँ। You are right, Mrs. Robin, said the crow. और जब रॉबिन ये अपनी बात कह रहे हैं कि उन्हें डोम की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे रख सकते हैं सुरक्षित, तो उस बात से क्रो भी क्या कहता है? एग्री हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से डोम बनाया जाए, हम हमारे बेबीज को अपने विंग्स के नीचे सेफ रख सकते हैं। We have no use for domes, and to this day neither Robin nor Crow have built dome over their nest. और उस दिन से रॉबिन और क्रो दोनों ने भी अपने नेस्ट के ऊपर डोम नहीं बनाया है। उनका जो नेस्ट है वो ऐसे ही ओपन रहता है, ऊपर से छत उनकी नेस्ट पर नहीं होता है। Mrs. Magpie went on building her nest just as she knew it ought to be built. Soon it was done, dome and all. मैगपाई अपना जो नेस्ट बनाने का काम है वो अभी भी कंटिन्यूसली कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो नेस्ट है वो उन्हें क्या करना है? पूरी तरह से बनाना है, कंप्लीट करना है। और वो पूरा तैयार हो जाता है डॉम के साथ, डॉम एंड ऑल। Indeed, Mrs. Magpie said, the swallows, we like your nest. The dome is a fine thing, but why should we build it? There are plenty of domes already built. We only need to make our nest under them. अब ये जो swallows हैं वो क्या कहते हैं? Swallows कहते हैं ये जो आपका नेस्ट बनाने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, आपका नेस्ट बहुत अच्छा है, उसके ऊपर वो जो डॉम बनाया वो भी बहुत अच्छा है, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डॉम है वो क्यों बनाने हैं? क्योंकि बहुत से डॉम तो ऑलरेडी तैयार होते हैं, जैसे कि छत होते हैं ना, तो वो छत तो ऑलरेडी तैयार होते हैं, तो हमें क्या करना है? सिर्फ उन छत के नीचे जाकर अपना नेस्ट बनाना है। Ethel says then many swallows built their nest on building, often under a roof or a window ledge. Others have made their under roof of often barns and still other under eaves. अभी भी ये जो बर्ड है swallows क्या करते हैं? अपना जो नेस्ट है वो किसी भी जो हम कहते हैं ना गोडाउन या फिर कोई सामान रखने के जो ऐसे घर होते हैं बड़े बड़े, जिसे हम गोडाउन कहते हैं, तो वहाँ पर तो बांस होते हैं, उसके नीचे या फिर लकड़ी का जो घर होता है उनके नीचे अपना नेस्ट बनाते हैं, यानी ऊपर से डोम बनाने की जरूरत नहीं होती। So all the birds flew away and left Mrs. Magpie without saying thank you. इस तरह से सारे के सारे बर्ड्स जो है वहाँ से उड़ जाते हैं विदाउट सेइंग थैंक यू टू मिसेस मैगपाई। मिसेस मैगपाई को कोई भी थैंक्स ना कहते हुए वहाँ से एक एक बर्ड जो है उड़ जाते हैं। ईच वन बिल्ड हर नेस्ट एज शी प्लेस। हर कोई अपना नेस्ट
बना लेता है जो कि उनको सूखा हुआ लगे, अच्छा लगता है। एंड ईच वन थॉट हर वे सो मच बेटर देन द मैगपाई, और हर कोई ये सोच रहा है कि मैगपाई ने जो नेस्ट बनाया है उससे हमारा नेस्ट जो है, हमारा जो नेस्ट बनाने का वे है वो बहुत ही बेटर है, अच्छा है। The magpie still built her nest at the top of a high tree. She makes it of mud and sticks. मैगपाई जो है अभी भी अपना नेस्ट जो है वो हाई यानी ऊंची ट्री पर बनाते हैं और स्टिक्स और मड के साथ वो बनाते हैं। एंड कवर इट विथ अ डॉम टू मेक इट कंफर्टेबल एंड कोजी। और वो जो नेस्ट बना रहे हैं स्टिक्स और मड के साथ, तो उसे ऊपर से डोम से कवर कर रहे हैं जिससे कि वो घर जो है वो उनको आरामदायी लगता है, सूखा हुआ लगता है। इस तरह से जो मैगपाई है अभी भी उसी तरह से अपना नेस्ट बनाते हैं, एक ट्री के ऊपर एकदम हाई ऊंचाई पर जाकर अपना नेस्ट स्टिक्स और मड के साथ बनाते हैं। और इस तरह से बाकी के जो बर्ड्स हैं वो हमने देखे हैं कि किस तरह मैगपाई का पूरा लेसन बगैर सुने ही बीच में ही उड़कर जाते हैं, लेकिन फिर भी मैगपाई जो है वो अपना काम कंप्लीट करके ही छोड़ता है। ऐसे नहीं है कि बाकी के बर्ड्स चले गए इसलिए उसने अपना जो नेस्ट बनाना है वो छोड़ दिया है ना। तो इससे हम भी क्या सीखते हैं कि हमें जो है हमारे काम के ऊपर फोकस करते रहना चाहिए, चाहे कोई हमारी तरफ ध्यान दे या ना दे। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है पूरा केयरफुली रीड करना है और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे। मीनवाइल बाय।